Well, hello and welcome students again. This is me, your English teacher Harsh, and we are here in the part 2 of the chapter Evans tries an O-level written by Colin Dexter. So, where were we in the story? We were actually in the cell of Evans the prisoner, Evans the break, Evans the smart prisoner, the cunning prisoner. We were in the cell of him and he was taking participation in the examination of German O-level exam. Here comes a phone call from the examination board for the corrections in the question paper. The governor doubted, he cross-checked it, dialed the numbers again, and it showed busy. There was another call from the magistrate, and the magistrate was asking for some police officers and a van as well. The governor was pretty sure of that his preparations and the arrangements are okay. So he did not pay any attention to all these happenings. Stephens, the prison officer, was outside the cell of Evans and he was checking in every minute whether the exam is going okay or not. After some time, Evans had put a blanket around himself, but as it was cold, Stephens thought it was okay. Finally, the exam was over, and as the plannings, Stephens took McCleary, the churchman, the invigilator, to the gate, and everything was according to the plan. The exam was over, and McCleary was sent out of the prison after conducting the examination, and Stephens was pretty happy because everything went according to the plan and the examination was successful. As Stephens was pretty happy after conducting the examination, he went back to the cell to ensure that he is to be happy or not. Finally, when he went to the cell, he was shocked because McCleary was lying there, wounded. He was bleeding badly. So, as you see, Evans had injured the invigilator and escaped out of the cell. Actually, the plan to escape out of the cell was there in the photocopy attached to the question paper. And according to that plan, he will go to a place called Newbury. So Carter, the superintendent of police, comes into the role, takes McCleary with him, and they went to search Evans, whether he is available for them or not, whether he hasn't gone far. Meanwhile, Carter calls the governor and says that we have missed Evans by a little margin, and McCleary, the churchman, because he was bleeding badly, he was wounded, so he was sent or admitted to the Radcliffe Hospital. The governor calls the Radcliffe Hospital and came to know that the hospital staff had sent an ambulance, but McCleary was disappeared. Now the governor has understood the whole story. Actually, McCleary helping Evans, McCleary, who was helping Evans, was actually Evans himself, and the real McCleary was found tied up at his residence. On the other hand, Evans went to Hotel Golden Lion. Because the governor came to know what was the planning of Evans to escape, he already went there in the room of Hotel Golden Lion. When Evans went there, he was received by the governor, because the governor was already sitting there in his room. So finally, it was over, and Evans tried to explain the complete plan to the governor. So is it over? Not at all. The policeman was called, and after sitting into the police van, Evans asks his friends to drive as fast as they can so that the police can't be able to catch them. Finally, Evans was successful in escaping out of the jail with the help of his friends. So, Evans
द ब्रेक हैज़ प्रूव्ड हिज नेम अगेन। तो इवांस ट्राइज एन ओ लेवल एक प्रिजनर की कहानी का पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे। हम हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं इवांस का, जो कि एक जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। द मेन थिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ जर्मन ओ लेवल एग्जाम, दिस वर्स, सो कीप इट इन योर माइंड। इसी दौरान एक फ़ोन कॉल आता है एग्जामिनेशन बोर्ड से, किस लिए? वो क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शंस करवाना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। गवर्नर को डाउट हुआ और उसने उसको क्रॉस चेक किया, वापस वो नंबर डायल किए तो पता चला कि वो नंबर्स जो है बिजी दिखा रहे हैं। फिर एक और फ़ोन कॉल आता है मैजिस्ट्रेट से। मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स और वैन की हमें ज़रूरत है। गवर्नर को फिर डाउट होता है, लेकिन उसको पक्का विश्वास था अपनी अरेंजमेंट्स पर, जो प्रिकॉशंस उसने लिए थे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उसमें वो बहुत श्योर था, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। स्टीफन्स जो था प्रिजन ऑफिसर, उसको बाहर लगाया गया था इवांस की सेल के, और वो हर 1 मिनट में जाके चेक कर रहा था कि वेदर द एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड प्रॉपरली और नॉट। कुछ देर बाद में स्टीफन्स ने नोटिस किया कि इवांस ने अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट, एक कंबल लपेट लिया है, लेकिन उसने देखा ठंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और जैसे कि प्लानिंग थी कि स्टीफन्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में स्टीफन्स जो प्रिजन ऑफिसर है वो मैक्लेरी को, इन्विजिलेटर को, गेट तक छोड़ के आएगा सी ऑफ करने के लिए। तो एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। स्टीफन्स बहुत खुश है क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। लेकिन वो एक बार और अश्योर होना चाहता है कि वापस जाए वो सेल में और चेक करे कि प्रॉपरली उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, मैक्लेरी चला गया है और इवांस जिसको वो छोड़ के आया है सेल में वो वहाँ है कि नहीं। जब वो वापस जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवांस नहीं होता है, मैक्लेरी होता है, और मैक्लेरी को तो वो पहले ही बार छोड़ के आ गया है। तो उसको वो सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। मैक्लेरी वहाँ पड़ा है, लेटा है, और घाव हैं उसके, ही वॉज कम्प्लीटली वुंडेड एंड ब्लीडिंग बैडली। अब क्या किया जाए? अब देखने से ऐसा लगता है कि इवांस ने मैक्लेरी को इंजर्ड कर दिया है और वो इस्केप करने में, भागने में सक्सेसफुल हो पाया है। क्या ऐसा है? आगे पता चलेगा वास्तव में हकीकत क्या है। प्लान क्या था? इस्केप करेगा इवांस, किस तरह से करेगा इवांस इस्केप यहाँ से, वो सब कुछ लिखा हुआ था। वो जो फोटोकॉपी अटैच की गई थी क्वेश्चन पेपर के साथ में, उसमें तो अकॉर्डिंग टू द प्लान वो यहाँ से भागने के बाद में एक जगह है न्यूबेरी, वहाँ जाएगा। तो कार्टर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसने मैक्लेरी को साथ, क्योंकि मैक्लेरी इवांस के प्लान के बारे में जानता था, कुछ जानकारी थी उसके पास इवांस के प्लान के बारे में, तो मैक्लेरी कार्टर के साथ जाता है और कार्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो उसको लेके जाता है सर्च आउट करने के लिए। बीच में कार्टर गवर्नर साहब को फ़ोन लगाता है और कहता है कि इवांस को हम पकड़ने में थोड़े से बच गए, इवांस हमसे थोड़ा सा बच गया, हम उसको पकड़ने ही वाले थे और वो बाल बाल बचा, हम उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और मैक्लेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में। तो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में गवर्नर ने फ़ोन करके पूछा कि क्या ऐसा है, मैक्लेरी को यहाँ एडमिट करा दिया गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हॉस्पिटल की एक वैन भेजी है, एम्बुलेंस भेजी है मैक्लेरी को लाने के लिए, जबकि मैक्लेरी हमें मिला ही नहीं। और अब इवांस का सारा प्लान गवर्नर की आंखों के सामने घूमने लगा। एक्चुअल में जो मैक्लेरी इवांस को हेल्प कर रहा था भागने में, वो एक्चुअली मैक्लेरी था ही नहीं, वो तो इवांस खुद ही था। वो जो वास्तव में मैक्लेरी था वो तो उसके घर पे बंधा हुआ मिला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इवांस, अकॉर्डिंग टू द प्लान, इवांस हैड टू गो टू होटल गोल्डन लाइन आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम देयर। तो होटल गोल्डन लाइन में वो जाएगा। गवर्नर को पता चल गया तो गवर्नर पहले से ही होटल गोल्डन लाइन में उसके कमरे में जाके बैठ गया। जब इवांस गया अपने कमरे में तो पहले से ही गवर्नर वहाँ बैठा हुआ था। तो फाइनली इवांस को गवर्नर ने पकड़ लिया और स्टोरी समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इवांस के पास और भी ऑप्शन था, प्लान बी भी था इवांस के पास में। इवांस गवर्नर को पूरी की पूरी कहानी बताता है और गवर्नर पुलिस की वैन बुला लेता है और उस पुलिस की वैन में बिठा के इवांस को भेज देता है। कहाँ?
वापस सेल में बंद करने के लिए। लेकिन वो जो वैन होती है वो एक्चुअल में पुलिस की वैन नहीं होती है, वो उसके दोस्त होते हैं, पुलिस बन के आते हैं उनके ड्रेसेस में और वो उसको भगा के ले जाते हैं। इवांस कहता है उसके दोस्तों को कि ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन सो दैट वी कैन एस्केप फ्रॉम हियर एंड द पुलिस वोंट बी एबल टू कैच अस। तो फाइनली इस तरह से इवांस द ब्रेक अपने नाम को सही प्रूव कर लेता है और जेल से वो भाग जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। और अब करते हैं वाइंड अप वीडियो को भी और चैप्टर को भी। Thanks for watching my videos. If you like, you can like there on the YouTube. You can share, you can subscribe to my channel and you can get these kind of videos. Thanks for watching. Bye.